Hello dear students, how are you all? I welcome you all to the next module of economics in which we are studying the methods of measuring national income. I hope यहाँ तक आते आते आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि national income क्या होती है और इकोनॉमी इसको किस तरीके से मेजर करता है. So when you are already gone through with the concept of the national income, today we are going to begin with the next method which is known as the income method. Now when we talk about the income method, so let us first understand before coming on to the formula, let us first come through ki what this income exactly is, how does economy calculates its income, and what are the drastic things that people undertake in an economy or economists take in an economy when we are estimating the national income. कल हमने एक डायमेंशन देखा वैल्यू एडेड मेथड जिसमें हम प्रोडक्ट देखते हैं, राइट. आज हम देखेंगे कि सिर्फ इनकम मेथड. लेट मी रिमाइंड यू माय डियर दैट दीज आर द वेरियस मेथड्स यूटिलाइज्ड बाय द इकोनॉमी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम. व्हेन वी आर अंडरटेकिंग प्रोडक्ट ओनली, then we are taking product method. When we are taking care of the income generated by that, we take care of the income method. तो इसलिए दोनों मेथड को मिक्स नहीं करना. वहाँ पे हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, इसीलिए जो इनकम जनरेट हुई हमने उसको वहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया. हमने सिर्फ इतना देखा कि जो प्रोडक्ट है उससे कितना वैल्यू क्रिएट हुआ. आज हम यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास इनकलकेटेड हैं, ऑल दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हाट दे आर रेंडरिंग टू अस and how the income is being generated. Let us rewind ourselves back towards the 11th standard where we began with the economics, in which we have studied that there are certain factors of प्रोडक्शन. यहाँ से अपन इसको स्टार्ट करते हैं, इनकम मेथड पे थोड़ी देर बाद आएंगे. सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जब कभी भी बात करता है तो इकोनॉमिक्स बात करता है कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की. अगर इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करें तो कितने फैक्टर्स होते हैं हमारे पास? हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में थोड़ा सा एक सीक्वेंस हम चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास होता है लेबर. लेबर के साथ हमारे पास यहाँ पे होता है लैंड. लैंड के साथ हमारे पास यहाँ पे होता है कैपिटल, और कैपिटल के साथ हमारे पास यहाँ पे होता है एंटरप्रेन्योर, राइट. ये चार कौन होते हैं हमारे? ये चार होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मे बी माई प्रोडक्शन यूनिट इज बिग और मे बी माई प्रोडक्शन यूनिट इज स्मॉल, डजंट काउंट. whatever production has to take place with the help of these four factors of production. What these factors of production get in turn? So these factors of production are rewarded with certain returns. मतलब इन्होंने आपको मेहनत करके काम दिया है तो इन लोगों को हम क्या देते हैं? इन लोगों को हम देते हैं कुछ रिटर्न्स. मतलब अगर आपने किसी को भी अपनी कोई चीज़ इस्तेमाल करने के लिए दी है तो बट ऑब्वियसली यू विल बी चार्जिंग समथिंग इन टर्न. यानी कि वी आर टॉकिंग ओनली ऑन द इकोनॉमिक ग्राउंड्स, वी आर नॉट टॉकिंग ऑन एनी नॉन इकोनॉमिक, दैट इज out of love, friendship and something like that. We are not talking of any of such ground. What we are talking only about the economic purposes. That means if you are rendering some services to anyone, in turn you are taking certain charges. तो ये जो factors of production होते हैं, these factors of production gets rewarded. Say for instance, labor gets rewarded by wages, the land gets rewarded by rent, capital gets rewarded by interest, and entrepreneur gets rewarded by profit, right? So these are the returns that these particular factors of production are getting, and the returns being got by them is referred to as factor income. So if someone asks you what is the definition of factor income, so factor income is a type of reward that we are giving to the factors of production for rendering or taking their सर्विसेज. मतलब या तो हमको उनकी सर्विसेज लेनी है या हम लोगों को क्या करना है, या हम लोग उन लोगों से कोई ना कोई पर्टिकुलर कमोडिटी ले रहे हैं जिसके बदले में हम उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं. सो व्हेन वी आर रिवॉर्डिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द मैनर ऑफ द रिटर्न्स,
the returns rewarded to the factors of production is referred to as the factors of production. अब इसमें हम थोड़ा सा एक चेंज करते हैं. आज हम कैटेगराइज करते हैं वेजेस को एक कैटेगरी में और रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को कैटेगराइज करेंगे हम एक कैटेगरी में, राइट. टुडे वी आर, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊपर लैंड लेबर की जगह आज लेबर और लैंड लिखा, क्योंकि अब हमको इनको क्या करना है, आगे कैटेगराइज करना है, राइट. अब जब अपन इस वेजेस की बात करते हैं तो व्हाट आर द वेज इन विच the wages are being provided to the labor. So there are three ways. The first way is to pay the wages in cash. या तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास लेबर है आप उसको कैश में इंसेंटिव दोगे. जैसे अगर अपन बात करें एमपी गवर्नमेंट की, तो एमपी गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि जो भी डेली वेजेस पे लेबर आएगा उसको मिनिमम 350 पर डे आपको पे करना है. ये लेबर लॉ के हिसाब से चलता है. ठीक इसी तरीके से ऑफिस में सैलरीज दी जाती है, तो वेजेस में हम सैलरी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, राइट. तो व्हेन आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ द टर्म वेजेस, इट इज टू बी टेकन केयर दैट आई एम ऑटोमेटिकली इंक्लूडिंग द टर्म सैलरीज इन दैट, राइट. तो वेजेस में क्या आएगा, एक वेजेस जो हम इनको कैश में पे करते हैं, एक हम इन लोगों को वेजेस पे करते हैं इन काइंड. जैसे why do people want to be a government servant? People want to be a government servant because they are getting a number of fringe benefits such as उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाती है, या फिर सब्सिडीज उनको देती है कि उनके बच्चों की पढ़ाई की जो खर्चा है वो कम हो जाए. इफ़ अ चाइल्ड इज गेटिंग स्कॉलरशिप्स तो गवर्नमेंट उसको बेयर करता है. अगर आप कलेक्टर हैं, आप कमिश्नर हैं, आप आईजी हैं, तो आपके लिए घर अलॉट करेगी गवर्नमेंट, आपकी गाड़ी अलॉट करेगी आपकी गवर्नमेंट, इन सब का पेट्रोल का खर्चा अफोर्ड करेगी गवर्नमेंट. वाई? बिकॉज यू आर सर्विंग द इकोनॉमी. तो ये सारी चीज़ें, जो हॉस्पिटल का खर्चा, आपके घर का खर्चा, आपके घर पे जो मेड्स आ रहे हैं उनका खर्चा जो गवर्नमेंट बेयर कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज वेजेस पेड इन काइंड. जैसे लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल दैट देयर इज अ सिटी, देयर इज अ, जैसे अपने पास यहाँ पे एमपी में इंदौर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है दैट इज कॉल्ड एज पिथमपुर. तो पिथमपुर में गवर्नमेंट में पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है. ऐसे ही इंडस्ट्रियल एरिया में अलग अलग गवर्नमेंट कंपनीज काम करती हैं. इन द सेम वे देयर इज अ BHEL इन हरिद्वार, राइट, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में काम करने वाले वर्कर्स के लिए कैश में तो उनको वेजेस दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ में उनके बच्चों के लिए स्कूल उन्हीं प्रेमाइसिस में खुला हुआ है, उनके घर पे टेक केयर करने के लिए हॉस्पिटल्स उसी प्रेमाइस में खुले हुए हैं, उनको रहने के लिए घर उसी पर्टिकुलर प्रेमाइस में बनाए हुए हैं, ताकि वर्कर्स को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, उनके परिवार की पूरी सेफ्टी रहे. इन सब का खर्चा उठाती है BHEL, मतलब गवर्नमेंट कंपनी उठाती है. तो दैट इज कॉल्ड एज वेजेस पेड इन काइंड. अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस, कि जहाँ पे भी इन्फोसिस अपना ब्रांच डालता है वहाँ पे पूरी इन्फोसिटी बनती है, जहाँ पे खेलने की पूरी व्यवस्था, जो वर्कर्स रात में रुकते हैं उन लोगों के लिए डॉर्मेटरीज की फैसिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग दोज कंपनीज आर प्रोवाइडिंग, दैट इज कॉल्ड एज वेजेस पेड इन काइंड. अब इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आती है बात सोशल सिक्योरिटी की, कि आपकी जब रिटायरमेंट होगा तो आपको पेंशन्स मिलेंगी, ग्रेच्युटी मिलेगा, अलाउंसेस मिलेंगे, तो ये कहलाता है सोशल सिक्योरिटी, राइट. तो वेजेस को देने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं. या तो हमने वेजेस को पे कर दिया कैश में, या हमने वेजेस को पे कर दिया काइंड में. जब हमने वेजेस को काइंड में पे किया तो इसके साथ हम यहाँ पे देखते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन. ये जो कंट्रीब्यूशन होता है ये करता है एम्प्लॉयर, यानी कि जो भी व्यक्ति आपको सर्विस, मतलब जो भी व्यक्ति आपसे सर्विसेज ले रहा है, आपका एम्प्लॉयर, वो करेगा सोशल सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूशन, आपकी पेंशन, आपकी ग्रेच्युटी, आपके HRA, राइट. तो हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन विच द वेजेस कैन बी पेड? तो द वेजेस कैन बी पेड इन 3 टाइप्स, दैट इज वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड एंड द सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर्स फॉर योर बेनिफिट एंड फॉर योर सेफ्टी. तो इतने बेनिफिट इस बार हमने खोल लिए. पिछली बार हम 11th में थे, हमारा लेवल थोड़ा सा कम था, तो हमने सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मेन रिवॉर्ड पढ़े. इस बार हम पढ़ रहे हैं कि रिवॉर्ड्स हम कितने अलग अलग तरीके से देखते हैं. अब इसके बाद अगर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं रेंट की, राइट. तो रेंट की अगर अपन बात करें तो
तो अगर आपके पास यहाँ पे आपने कोई प्रीमाइस रेंट पे दिया है तो रेंट इज ऑल्सो बीइंग कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरी। एक होता है कि अगर आपने कोई ऑर्डिनरी रेंट लिया है तो उसको अपन रेंट बोलेंगे, लेकिन अगर कोई लीज्ड प्रॉपर्टी है तो वो कहलाएगी रॉयल्टी। क्या कहलाएगी वो? रॉयल्टी, राइट। यानी कि एक रेंट हो गया और एक रॉयल्टी हो गया। दोनों क्या है? टाइप ऑफ रेंट है। डिफरेंस क्या है? ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी जो 11 मंथ के रेंट पे नॉर्मल लॉ के हिसाब से चलेगी उस पे किया जाता है रेंट, लेकिन जब आपने बसेस हायर करी हैं, जब आपने कोई प्रॉपर्टी 5-6 साल के लिए लीज पे ली है तो उसके लिए आप पे करते हैं रॉयल्टी। बोथ ऑफ दीज आर द टाइप ऑफ रेंट्स ओनली। तो रेंट कितने तरीके के हो गए? लैंड को मिलने वाला रेंट 2 तरीके का, या तो ऑर्डिनरी रेंट मिलेगा उसको, या फिर हम 11 महीने के लिए उसको, या फिर हम उसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए एडजस्टमेंट या एग्रीमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के लिए हम पे करते हैं रॉयल्टी। फिर इंटरेस्ट जो कैपिटल को मिला, इट्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इंटरेस्ट। लेकिन अगर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कैन अगेन बी कैटेगराइज्ड इनटू वैरायटी ऑफ कैटेगरीज। द फर्स्ट टाइप इज कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट प्रॉफिट, राइट। तो ये अपने लिए क्या हो गया? ये अपने लिए कॉर्पोरेट प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे कॉर्पोरेट प्रॉफिट के साथ अपने पास यहाँ पे होता है डिविडेंड। अगर अपन डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड भी हमारे लिए क्या है? डिविडेंड भी हमारे लिए एक तरीके का प्रॉफिट है। तो चाहे अपन कॉर्पोरेट प्रॉफिट की बात करें, चाहे अपन डिविडेंड की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट ओनली, राइट। तो अगर आपको कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी दे रखा है या डिविडेंड भी दे रखा है, ये दोनों भी क्या हैं? ये दोनों भी टाइप ऑफ प्रॉफिट हैं। अब प्रॉफिट को कैटेगराइज करने के साथ आज हम यहाँ पे एंटरप्रेनर को भी कैटेगराइज करेंगे। एक एंटरप्रेनर आपके लिए होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, एक होता है आपके लिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। ये अपन ने 10th में पढ़े थे 2 टर्म, दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो एंटरप्रेनर 2 जगह पाए जाते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड में और एक अनऑर्गेनाइज्ड में। अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कौन आएगा? जैसे बार्बर्स हैं, राइट, या फिर अपन बात करें कुछ छोटे मोटे वेंडर्स हैं जिनकी छोटी छोटी दुकानें होती हैं रिटेल्स की। ऑल दोज आर कैटेगराइज्ड इनटू दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एंटरप्रेनर की, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एंटरप्रेनर को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर अपन बात करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, तो इन लोगों के द्वारा अर्न की जाती है अलग अलग तरीके की इनकम, जिसको हम अलग अलग तरीके का नाम देते हैं। अब देखो ये क्या हो गया? ये हमारा 11th का कंसेप्ट हो गया। 12th में मैंने इनको थोड़ा और एक्सपैंड कर दिया, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर। इनको जो रिवॉर्ड मिलता है वो फैक्टर इनकम, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। वेजेस इज कैटेगराइज्ड एज वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। Rent is categorized as both rent and royalty. Then there is a corporate profit and dividend which is called as the profit. Then there is the organized and unorganized sector as well. इतना समझ में आया? अब यहाँ पे मैं इनपुट कर रही हूँ इकोनॉमिक्स। अब देखो कि इकोनॉमिक्स कितना सा है। जब अपन बात करते हैं wages paid in cash, wages paid in kind और social security contribution by the employer, या अगर जब हम बात करते हैं वेजेस की, तो इसके लिए हम एक कैटेगरी डिटरमाइन कर रहे हैं जिसको कहा जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज मतलब जो नौकरी करते हैं। तो यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या हो गया? वेजेस पेड इन कैश, वेजेस पेड इन काइंड एंड सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय द एम्प्लॉयर। इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। यानी कि जो भी इनकम जनरेट हुई इकोनॉमी में, सबसे पहले वो हमने दे दिया लेबर को। अब उसके बाद जो बचा वो कहलाता है सरप्लस। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट की, तो इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं इकोनॉमिक्स में ऑपरेटिंग सरप्लस। किस किस को हमने ऑपरेटिंग सरप्लस कहा? यहाँ पे
रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या फिर कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड डिविडेंड। इन सबको हमने क्या कह दिया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ने अर्न किया, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ने अर्न किया मिक्स्ड इनकम, राइट? ये 3 तरीके की इनकम है जो इकोनॉमिक्स में जनरेट हुई। देखो मैंने हर बार कहा है इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल है, वो कभी भी चीज़ों को इतना लेंदी तरीके से नहीं खींचता। सिंपल सी चीज़ है, फैक्टर इनकम में एक आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, एक आता है ऑपरेटिंग सरप्लस और एक आता है मिक्स्ड इनकम। यानी कि व्हेन यू विल बी टॉकिंग अबाउट द इनकम मेथड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ compensation of employee, that is COE, operating surplus, that is OS, and mixed income, that is MI, right? ये हो गई इकोनॉमिक्स। फिर से इसमें इकोनॉमिक्स इतनी लगी, बाकी का अपना क्या चल रहा है? बेसिक कंसेप्ट। फटाफट से इसका क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे सो दैट यू कैन सेव इट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस एंड यू कैन मेक द नोट्स वेरी प्रॉपरली आउट ऑफ दैट, कि इस तरीके से इनकम को हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे, जिसमें इकोनॉमिक्स हमने सिर्फ 3 टर्म की लगाई है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। इनके बेसिक में क्या चलता है, ये आपका कंसेप्ट है, राइट? तो आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज बीइंग क्लियर टू यू कि वी आर गोइंग टू टॉक नाउ अबाउट 3 टर्म्स, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। चलो अब अपन बनाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला कि जब अपन इनकम मेथड को यूटिलाइज कर रहे हैं तो इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम इन टर्म्स को यूटिलाइज करेंगे तो इन टर्म्स को यूटिलाइज करके बनेगा हमारा फॉर्मूला दैट व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, और इनकम मेथड से हम क्या कैलकुलेट करते हैं। इसको आगे देखने के पहले एक छोटा सा नोट अपनी कॉपी में डाल लो, दैट विद द हेल्प ऑफ income method the economy calculates its domestic income। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट तो है ही नहीं, तो जीडीपी कैलकुलेट करने का क्वेश्चन ही नहीं आता। एक HOT क्वेश्चन बन गया कि मैम अगर why GDP is not calculated by income method, because we are talking from the dimension of the income and we are not talking from the dimension of the product। तो income method से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करेंगे हमारी डोमेस्टिक इनकम। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? इसका फॉर्मूला हुआ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें हमने प्लस कर दिया ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर हमने इसमें प्लस कर दिया मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट? यानी कि ये कहलाई हमारी डोमेस्टिक इनकम। जब हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें सिर्फ प्लस करना है NFIA, क्योंकि नेट तो नेट में ही है, डोमेस्टिक कन्वर्ट हो गया नेशनल में, प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट नहीं करते, ये फैक्टर कॉस्ट। तो ये आ गया हमारा NNP@FC, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है नेशनल इनकम। ये बन गया आपका फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय विच मेथड? बाय इनकम मेथड। बुक्स में जब आप देखोगे तो यही फॉर्मूला आपको एक और तरीके से देखने को मिलेगा। ये फॉर्मूला आपको ऑल्टरनेटिवली ऐसे देखने को मिलेगा, जैसे wages in cash plus wages in kind plus social security contribution by employer
ये हमने तीनों को प्लस किया, इसमें हमने प्लस कर दिया रेंट, हमने प्लस कर दिया रॉयल्टी, हमने प्लस कर दिया इंटरेस्ट और हमने यहाँ पे प्लस कर दिया कॉरपोरेट प्रॉफिट, हमने यहाँ पे प्लस कर दिया डिविडेंड। एक और प्रॉफिट होता है, हमने प्लस कर दिया, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जो अभी तक अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा है। ठीक है, ये हमने तीनों को प्लस किया, इन सब के साथ हमने यहाँ पे प्लस कर दी मिक्स्ड इनकम। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए कैलकुलेट हो गया NDP एट FC। इसमें हमने प्लस कर दिया NFIA, ये हो गया हमारा NNP एट FC। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं आगे, जब आपने रेंट और रॉयल्टी को जोड़ा ये बनेगा रेंट, जब आपने कॉरपोरेट प्रॉफिट, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को जोड़ा ये बनेगा आपका प्रॉफिट। अब अपन इसको फिर से समराइज करते हैं। अगर अपन ने वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड एंड सोशल कंट्रीब्यूशन लगाया, ये बन गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अगर आपने रेंट से लेकर प्रॉफिट तक अगर आपने ऐड कर दिया, ये बन गया ऑपरेटिंग सरप्लस और ये आपकी मिक्स्ड इनकम। क्योंकि आप लोग यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स को बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो बिगिनर्स लेवल में मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में हमेशा आपको स्पेसिफाइड होगी। उसके अंदर कितनों की इनकम आ रही है ये सिर्फ थ्योरेटिकल 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। मिक्स्ड इनकम इंक्लूड्स व्हाट? तो मिक्स्ड इनकम इंक्लूड्स द इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेसमैन ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इनको आपने मिला के बोला ये है द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय विच मेथड? बाय इनकम मेथड। तो यहाँ पे हम सारा डायमेंशन देख रहे हैं इनकम का, और इसके प्रीवियस वाले में हमने सारा डायमेंशन देखा था ऑफ द वैल्यू एडेड मेथड का, राइट? ये कंसेप्ट है आपका। अगेन टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन prepare the notes, learn the formula, because once the formula will be clear, then it will be very easy for you people to solve the numerical part. I hope both the methods have been very clear to everybody of you. If you like the video, then please do like, subscribe and comment, and do not forget to send your feedback for this particular module so that I can improvise, you can improvise, and you can get what you exactly need. So please stay connected, stay safe, and then start studying, study very hard, because the things have already moving ahead. Thank you so much.